Next story. The Bihar government has issued a notification on Monday to release 27 prisoners who've completed 14 years of their life term in jail. Now, ex-MP Anand Mohan, who is believed to have a good Rajput vote bank, is also on this list. This comes after amendment of prison laws done by the state government. So the Bahubali leader Anand Mohan Singh was serving life imprisonment in connection with the lynching of IAS officer G. Krishnaiah in Muzaffarpur in 1994. BSP chief Mayawati and the BJP have strongly criticized the Bihar government's move for the premature release of Singh. Nitish Kumar government had amended the Bihar Prison Manual 2012, removing the quote, murder of a public servant on duty clause from the list of cases for which remission of jail term cannot be considered. So who is Bahubali Anand Mohan? He's a 75-year-old Bihar muscle man and former MP from Shiohar. Was convicted in 1994 IAS Krishnaiah's murder case. He was awarded a death penalty, in fact, by trial court in 2007. But Patna High Court converted it to life imprisonment. Anand Mohan is father of Shiohar RJD MLA Chetan Anand Singh. He's also a close aide of the RJD chief Lalu Yadav and the Yadav family that is also sharing power in Bihar. So the big question we're asking today, as far as this remission is concerned, is it not politics trumping justice? जो क्रिमिनल होगा उसको अटल जी क्यों जो है सो साथ बिठाएंगे, लालू जी क्यों साथ बिठाएंगे, नीतीश जी क्यों साथ बिठाएंगे, मोदी जी क्यों साथ बिठाएंगे? फ्रीडम फाइटर परिवार है मेरा, ये क्रिमिनल कर सकता है क्या? Bihar government is unconstitutional, it is arbitrary, unnecessary, it is against the public interest, and Nitish Kumar should come before the public and say what was the basis of the decision. आनंद मोहन का उस हत्या से कोई संबंध नहीं है। हम सबकी बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो है कोई अपराधी प्रवृत्ति के नहीं थे। Let's go across to the guests joining us. Love Kumar of the JDU is joining us. Also, Suman Kumar Malik from the RJD will be with us. Raman Malik of the BJP too. Love Kumar, you know, every time a decision is taken in the Bihar government since the new realignment by Nitish Kumar, the question that arises is exactly who is in control of a government headed by a chief minister known for Sushasan? Is it Sushasan for a convicted life prisoner to get remission even though he is guilty of killing a serving IAS officer, public servant on duty? ये सुशासन है बिहार में? नीतीश कुमार चला रहे हैं गवर्नमेंट या आरजेडी चला रही है? बिल्कुल सुशासन है और नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में गवर्नमेंट चल रही है, किसी दूसरे के नेतृत्व में नहीं चल रही। और नीतीश कुमार जी बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। इतनी जो है तौबा बीजेपी और अब अन्य पार्टियां मना रही है। कुछ दिन पहले ही तो बिल्किस बानो हत्याकांड के जितने सारे अभियुक्तों को, बलात्कारियों को शिष्टाचारी बताकर छोड़ा गया था। कोई डिबेट का इशू नहीं रहा पूरे देश में। बहुत ही बट गवर्नमेंट ने गुजरात में वो पॉलिसी सिर्फ बिल्किस बानो के केस के लिए नहीं चेंज करी थी ना, वो पॉलिसी गुजरात में बहुत पहले चेंज हो गई थी इनफैक्ट। ये पहले चेंज हो गई थी, लेकिन आपने तो अभी पॉलिसी चेंज करी है और ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए वो पॉलिसी चेंज करी है। पॉलिसी समय के अनुसार ही बनाई जाती है और ऐसी एकाध घटनाएं नहीं घटी है। राष्ट्रपति महोदय ने भी कई को क्षमादान दिया है। तो क्षमादान और ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके तहत जेल मैनुअल के तहत जेल में उनके व्यवहार के उपरांत ये डिसीजन लिया जाता है कि उनका व्यवहार कैसा रहा। तो आपने आनंद मोहन के लिए करा है ये डिसीजन, तो बोल दीजिए ना कि आनंद मोहन के लिए किया है। आपने सिर्फ एक आनंद मोहन जी पर ही सवाल उठाया है। मैंने इस पे जवाब दिया कि आनंद मोहन जी का व्यवहार जेल में ऐसा रहा। 6 किताबें उन्होंने लिखी है, उन्होंने ऐसी कविता लिखी जो पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया। आनंद मोहन जी का व्यवहार जेल में जाने के बाद का जो व्यवहार है उसके आधार पर डिसीजन लिया जाता है, जेल से रिपोर्ट मंगाई जाती है और उसके आधार पर एक सामान्य प्रक्रिया है। और लॉ में चेंज लॉ बनाया जाता है और अमेंडमेंट भी किया जाता है। संविधान में ये अमेंडमेंट का रैशनल क्या है? सुमन कुमार मलिक, व्हाट्स द रैशनल फॉर दिस अमेंडमेंट? व्हाई हैव यू गिवन पीपल who have killed serving officers a pardon like this?
an early remission like this? What's the rationale? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जिस बात को मुद्दे को हवा दिया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। देश के आजादी से पहले भी जब हमारे यहाँ गोरों का शासन था, उसमें भी जिन कैदियों की अच्छा चरित्र रहता था, उनको समय से पहले छोड़ा जाता था। और देश के आजादी के बाद भी अनेक अवसरों पर कोई कैदी, चाहे राजनीतिक कैदी हो या कोई भी कैदी हो, उनके अंदर का जो चरित्र है, उनका जो व्यवहार है, अगर अच्छा होता है तो सरकार एक जो है सो बैठक बुलाती है जेल में और विधि विधेयक जो है सो एक निर्णय लेके उन्हें छोड़ा जाता है। आनंद मोहन चूंकि एक बड़े नाम हैं, ये सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, सामाजिक क्षेत्र में रह चुके हैं, और अब जो घटना घटी वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके से ये जेल में थे, इन्होंने जिस तरीके से अपना व्यवहार रखा, एक आवाज उठी, और ये अकेले नहीं है, और भी लोग हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार ने विधि सम्मत एक निर्णय लेके, ये नहीं कि सरकार आनंद फानंद में आई और इनको रिहा करने जा रही है, विधि सम्मत जो विधि वेत्ता लोग हैं उनसे निर्णय लिया गया। और जो कुछ कैदियों को, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह के लोग हैं, उन्हें छोड़ा जा रहा है। But on one hand, the government cannot claim we've done it just because it seemed like the right thing for such category of criminals and prisoners, and then also justify why Anand Mohan is a true beneficiary and the right beneficiary of this remission. Raman Malik, the question that arises is a lot of people who do virtue signaling in the Bilkis Bano case, and the BJP government in Gujarat has been on the receiving end of that case. Why are they not so outraged about this remission, where the government has changed this policy only now? देखिए, पॉलिसी अभी चेंज करी गई और वो करा गया, लेकिन सुशासन बाबू की, वो बोलते हैं ना, गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलता है। तो सुशासन बाबू के आसपास है कौन? आज का गुंडा राज, बम का गुंडा राज बंगाल में, अतीक अहमद जैसों को पालने वाले यूपी में, ये अभी इन्हीं से मुलाकात करके आ रहे हैं। तो ताजा अंडरस्टैंडिंग है कि गुंडों को कैसे पाला जाता है, दबंगों को कैसे बड़ा बनाया जाता है। दिस इज द इंफॉर्मेशन और द क्रैश कोर्स दैट सुशासन बाबू हैज जस्ट रिसीव्ड। नाउ द पॉइंट इज, and which I would like to ask, the same set of people were thumping their chairs, were crying that, oh, injustice has happened. अब मेरा इनसे पूछना यह है कि जब आप एक अपराधी के लिए अपने कानूनों को बदलते हैं और उनको बाहर छोड़ते हैं, उसका आपको क्या फायदा होगा? यही फायदा होगा ना कि आपकी दबंगई बढ़ेगी। तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि जब अतीक अहमद जैसे लोगों के लिए समर्थन देने सड़कों पे लोग आते हैं, तो तब आप लोगों चुप हो जाते हैं, मुंह में दही जम जाती है, तब कुछ भी नहीं बोलते, तब कोई डेमोक्रेसी खतरे में नहीं होती, तो आपको तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज आपको फर्क पड़ रहा है। और क्यों but पड़ the रहा है? question, Raman Malik, the question that also goes to the BJP is that you gave remission, early remission to Bilkis Bano's convicted rapist. So what moral ground do you have to raise a question on this? We are working as per the policy. We are not worked specifically किसी एक के लिए हमने कोई नया कानून बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। No, but the RJD, JDU government can also claim कि उन्होंने किसी एक आदमी के लिए नहीं किया ना। नहीं, सुनिए, the most important factor is कि यहाँ पे एक व्यक्ति को आजाद करने के लिए ये पूरा प्रकरण रचा गया है और एक निर्धारित प्लान के अनुरूप इसको रखा गया है, क्योंकि अब जैसे जैसे चुनाव पास आते जाएंगे वैसे वैसे दबंगों को बाहर निकालना एक नीति है। लेकिन जहां तक गुजरात की बात है, the fact that this man convict is close to the RJD leadership, सुमन जी, ये सवाल तो उठेगा ना कि आपने अपने से जो करीबी हैं उनके लिए ये काम किया, ये तो नेचुरल सवाल है। नहीं, मैं बहुत ईमानदारी से आपको बतलाता हूँ। ये जो विपक्ष है, हमारे यहाँ जो विपक्ष है, चाहे वो हमारे बिहार का विपक्ष हो या देश में जो सरकार, केंद्र की सरकार है, वो एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने में मशगूल है। और आप जो देख रहे हैं, ये जो आनंद मोहन जी को या इनके साथ अन्य जो 27 लोगों को छोड़ा जा रहा है, ये कोई अलग से नियम नहीं बनाया गया है, एक सामान्य प्रक्रिया। हाँ, चूंकि हमने अभी कहा है, क्योंकि इसमें एक आनंद मोहन जैसे व्यक्ति हैं, विपक्ष को हल्ला करने का एक अवसर मिल गया है। एक
एक बोलने का अवसर मिल गया है। और अखिलेश ये से इंस्पायर हो रहे हैं ना, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। अगर दूसरे सामान्य लोग होते तो इतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन आप भेज आनंद देते हैं मोहन जेल जी हैं में इस और तरीके जेल से से। निकाल और के इसमें गुंडे को सरकार पकड़ की के अपनी रखते कोई मंशा नहीं है। न सरकार सामाजिक लाभ लेने की मंशा रखती है, न राजनीतिक मंशा है, न चुनावी मंशा है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और उसी के तहत आनंद मोहन और अन्य कैदी छोड़े जा रहे हैं। Yes, Raman Malik, you want to respond? Respond now. एक यूट्यूबर को तो जेल में भेज देते हैं एनएसए लगा के, और आप करते ही हैं कि एक गुंडे को बाहर निकालते हैं। अदला बदली हो रही है क्या? अतीक अहमद का जो पूरा प्रकरण था, जो अखिलेश ने एक पूरा सिस्टम बनाया था गुंडा राज का, आप अभी अभी क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। ये लालू जी वाला ही सिस्टम है। सुमन जी, आपके लिए सवाल। जी जी, एक बार रिपीट किया जाए। ये कह रहे गुंडा राज का ये मेमोरी है, ये लालू प्रसाद यादव की मेमोरी है जो हो रहा है आज बिहार में। नहीं, अब नहीं, हमने अभी कहा ना कि ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का एक परंपरा, एक चलन शुरू हो गया। तो फिर उस गरीब को बाहर निकालो। पहले क्या था कि विपक्ष भी सकारात्मक रूप से चलती थी। अगर सत्ता पक्ष या जिनकी सरकार होती थी कुछ गलत होता था तो विपक्ष के लोग बोलते थे कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, हमसे रायशुमारी लीजिए। लेकिन अब रायशुमारी नहीं चलती है, अब आरोप प्रत्यारोप। और अभी हमारी जो सरकार है, भाई साहब एक मिनट, अभी हमारी सरकार कोई चुनावी मंशा लेके नहीं कर रही है। अभी जो भी कर रहा है ना, जो हमारी विपक्ष है वो लाभ लेना चाहती है, और लाभ लेने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर, तेजस्वी पर और हमारी सरकार पर, महागठबंधन की सरकार पर अनर्गल प्रलाप ये लोग कर रहे हैं। Well, it is the opposition's job to ask questions, and it isn't just the opposition per se in Bihar that is raising questions. You've got Mayawati also raising questions. Ultimately, it is, of course, the leadership of the JDU and the RJD, especially Nitish Kumar, who some claim has prime ministerial ambitions or is wanting to lead a third front against the BJP in 2024, will have to answer what is the precedent they're setting and what is the benchmark they're setting for them. Are they going to stand for those who kill officers on duty? Or are they going to stand for those who are the victims in such cases? I leave it at that. I do thank our guests for joining us. Time for a very short break. On coming up next, we'll get you the latest from Sudan that has plunged into a civil war, and also how India's Operation Kaveri is ongoing to evacuate stranded Indians. More on the other side.